Yes, we are going to learn English lesson number 3 and friends. So in this lesson what we are going to learn? Yes, we are going to learn about and friends. You have seen, yes, at your home, whenever you will go outside of your house, if you will go to the park, everywhere you can see ants. What they are doing? Yes, they are moving from here and there. Yes, what they are doing? So they are also keeping or bringing the food for themselves. They are storing food for themselves, right? And even we will get inspiration from that they are not tired anymore. Like जब भी आप उनको देखोगे वो कभी आपको थके हुए नहीं दिखते, right? They will not take a rest any single minute. So from that we also need to learn that we also don't have to stop anything. We should work hard for better future. Okay. So we will get that inspiration from them. In this lesson what we are going to see? Yes, one boy is there and he is watching all these things. How ants are moving, how they are climbing the log, how they are eating or how they are taking the food for themselves. Okay. In the story, one boy is then. His name is Tony. Yes, what he is doing? So in the morning, Tony was alone. Alone मतलब without anyone else. That means कि कोई नहीं था, वो अकेला था. Tony played with his friends after lunch every day. और टोनी अपने फ्रेंड्स के साथ रोज़ खेलता था. कब खेलता था? Yes, after lunch. But it was only 10 in the morning now. बट अभी तो सिर्फ मॉर्निंग के 10 ही हुए थे. दैट मीन्स के सुबह के 10 ही बजे थे. सो ही वॉन्ट्स टू प्ले. तो उसने अपनी मदर को पूछा, कैन आई गो आउट टू प्ले मदर? यस, क्या पूछता है? प्लीज़ कैन आई गो आउट टू प्ले मदर? ऐसा टोनी ने पूछा, राइट कि क्या मम्मी मैं बाहर खेलने जा सकता हूँ? वैसे तो लंच के बाद जाता है. बट दिस टाइम ही वॉन्ट्स टू गो एट इन द मॉर्निंग. सो what his mother said? Yes, his mother said, yes, you can, Tony. I will call you at lunch time, said mother. उसके बाद वो क्या करता है? गार्डन में जाता है. Now here you can see the garden. So he went out into the garden to play. Tony loved the garden. उसको गार्डन में बहुत अच्छा लगता था. He loved to look at the colorful flowers and fruits on the trees. He loved to play with bundles of stick. उसको क्या क्या अच्छा लगता था? Yes, उसको कलरफुल फ्लावर्स देखने अच्छे लगते थे. एंड फ्रूट्स ऑन द ट्री. और जो ट्रीज़ के ऊपर फ्रूट्स लगे हैं वो भी उसको देखने अच्छे लगते थे. Yes, उसके बाद उसको क्या अच्छा लगता है? He would like to see the bundle of stick that you can see, then dry leaves and old tin pail. यानी ये चीज़ उसको देखना और उसके साथ खेलना अच्छा लगता था. He is playing with the bundle of stick, then dry leaves मतलब सूखे पत्ते, right? So these all things he can see. But today he also found something else. और उसके बाद उसको कुछ और भी दिखता है. क्या दिखता है? He saw an old broken log in a corner of a garden. देखो आपको लॉग दिख रहा है? Yes, a line of a shiny black ants marched up and down this log. अब वो जो लॉग आपको ब्रेकन दिख रहा है उसके ऊपर उसको एंड्स की लाइन दिख रही थी, यानी कि चींटियाँ. तो आपको उनको दिख रही शाइनी ब्लैक लाइन, यानी कि शाइनी ब्लैक एंट की लाइन आपको दिख रही है. टोनी बेंट डाउन एंड सेड, हेलो, आई एम टोनी, आई एम ग्लैड टू सी यू. उसने क्या बोला? वो नीचे झुका और उनको बोला, हेलो, मेरा नाम टोनी है और मुझे आपको मिलके बहुत खुशी हुई, यानी आपको देख करके बहुत अच्छा लग रहा है. तो आपको क्या लगता है, क्या एंट्स को भी अच्छा लगा होगा उससे मिल कर के? यस, अगर टोनी उससे मिल कर के बात कर रहा है तो ऑब्वियसली उनको भी अच्छा लगेगा, राइट? सो वी हैव सीन दैट मार्च्ड अप लेटर इज देयर. सो मार्च्ड अप वर्ड मीन्स क्या होता है? यस, वॉक लाइक अ सोल्जर्स. यानी आपने देखा होगा कि परेड में सोल्जर्स कैसे करते हैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट, दैट टाइप ऑफ मार्च अप. सो वो क्या कर रहे हैं? चींटियाँ भी सारी चल रही हैं लाइक अ सोल्जर्स. दैट मीन्स के
लाइन में चल रहे हैं अच्छे से। ओके, तो उन्होंने बोला कि आपको देख करके मुझे खुशी हुई। सो ants will be also happy. Yes, after that what is that? Yes, Tony watched them. Tony उनको देखता रहा. What are they doing? Where are they going? He wondered. Wondered यानी वो शॉक हो गया, उसको अद्भुत लग रहा था कि ये कहाँ जा रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं. What are they doing? वो क्या कर रहे हैं. Where are they going? वो कहाँ जा रहे हैं. ये देख करके उसको आश्चर्य हुआ. He looked carefully at an ant. वो क्या कर रहा था, एंट को देख रहा था, राइट. एंड इट वॉज कैरिंग सम फूड इन इट्स माउथ. और वो क्या कर रही थी, फूड को अपने माउथ में ले जा रही थी. द अदर एंट्स वेंट अंडर द लॉग एंड पुट द फूड देयर. और वो दूसरी एंट्स को क्या देख रहे थे, वो ऊपर नीचे कर रहे थे. क्या कर रहे थे, यस दे आर पुटिंग देयर फूड अंडर द लॉग. वो लॉग के नीचे फूड को रख रहे थे, राइट. Then they came out again to get more food. They moved to one side to let other pass. यानी वो क्या कर रहे थे, फिर से बाहर आ रहे थे खाना लेने के लिए. Again to get more food यानी ज़्यादा खाना लेने के लिए. They moved to one side यानी वो एक साइड ही चल रहे थे. Why? Because to let other pass यानी ताकि दूसरी चींटियाँ भी वहाँ से पास ऑन हो सके. यस, क्या कर रहे थे, वो वन साइड ही चल रहे थे. सो बाकी की जो चींटियाँ है वो वहाँ से पास ऑन हो सके. लेट अदर पास मीन्स लेट अदर एंट गो पास्ट यानी कि वो वहाँ से पास ऑन हो सके. दे वर्कड टूगेदर एंड कैरिड बिग पीसीस ऑफ फूड. और वो क्या करती थी, एक साथ काम करती थी. टूगेदर मीन्स एक साथ, वर्कड यानी काम करते थे. एंड कैरिड बिग पीसीस ऑफ फूड. और वो बड़े बड़े फूड के पीसीस ले जा रहे थे. दे वेंट अप एंड डाउन बट दे नेवर स्टॉप्ड टू रेस्ट. वो कभी ऊपर जाते नीचे आते. लुक, दे वेंट अप एंड डाउन यानी वो ऊपर जाते नीचे आती, ऊपर जाती नीचे आती. बट कभी उन्होंने रेस्ट करने के लिए स्टॉप नहीं किया. क्या कर रही थी चींटियाँ, यस वो खाना लेने के लिए बार बार ऊपर जा रही थी और नीचे. नीचे क्यों, बिकॉज दे हैव केप्ट देयर फूड अंडर द लॉग, राइट. उसके बाद वो कभी रेस्ट करने के लिए स्टॉप नहीं करती. Tony watched the ants for a long time. Then he heard his mother calling him. टोनी उनको एंट्स को लॉन्ग टाइम तक देखता रहा और इतने में उसकी मम्मी ने उसको आवाज़ लगाई. टाइम फॉर लंच टोनी. इट वॉज नून ऑलरेडी. क्या बोला कि अभी लंच का टाइम है क्योंकि अभी दोपहर हो चुकी है. येस, वी आर टेकिंग लंच एट द नून टाइम. सो क्या बोला, टाइम फॉर लंच. इट वॉज नून ऑलरेडी यानी दोपहर हो चुकी है तो लंच करने के लिए आ जाओ. ही वॉज फीलिंग वेरी हंग्री. और उसको क्या लग रही थी, बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, राइट. सो ही जम्प्ड अप एंड सेड. और इसलिए वहाँ से वो जंप करके बोला गुड बाय, आई विल सी यू टुमारो मॉर्निंग. अब मैं कल तुम्हें मिलूँगा. कब मिलेगा वो, येस ही विल मीट दैम इन द मॉर्निंग. और वो उनको मॉर्निंग में मिलेगा. हीज एंड फ्रेंड्स नोडेड देयर हेड्स. और जो उसकी एंड फ्रेंड्स थी वो क्या कर रही थी, नोडेड यानी कि हेड को अप एंड डाउन करना. एंड बट डिड नॉट टॉक बिकॉज दे वेर स्टिल बिजी. उन्होंने सिर्फ हाँ ऐसे हम करते हैं हेड अप एंड डाउन, सेम थिंग दे हैव डन, बट दे आर नॉट टॉकिंग विथ हिम. They were still busy and marching up and down. Marching up and down means walking, moving like soldiers. Yes, that day Tony learnt an important lesson. What? To always work hard and work together as a team. Yes, क्या करना चाहिए हमें? Yes, हमें हार्ड वर्क करना चाहिए. टुगेदर एज अ टीम यानी टीम में, यानी एक साथ मिल कर के. अगर हम एक साथ मिल के काम करते हैं तो वो काम हमेशा सक्सेस जाता है. सो वी हैव टू वर्क टुगेदर एज अ टीम. ओके, सो व्हाट इज़ द मोरल ऑफ स्टोरी? यस, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ ऑलवेज वर्क हार्ड एंड वर्क टुगेदर एज अ टीम. दैट मीन्स दैट आई हैव एक्सप्लेन. ऑलवेज यानी हमेशा, वर्क हार्ड यानी साथ मिल के हमें क्या करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए.
एंड वर्क टुगेदर एज अ टीम, यानी हमेशा साथ में एज अ टीम काम करना चाहिए। ये किससे सीखा? यस, चींटियों से सीखा कि कैसे चींटियाँ एक साथ मिल कर के हार्डवर्क कर रही है, रेस्ट नहीं लेती हैं। यस, एंड दे हैव सक्सेस फॉर देयर वर्क, यानी हमें भी उनसे ये सीखना चाहिए। सो दिस इज द मोरल ऑफ अवर स्टोरी। सो हियर वी हैव completed our lesson number 3 and friends. So thank you for watching my video.